Good morning, dear friends. In this video we will read this chapter from line number 40. Okay, so line number 40 we will start today, right? Okay, thanks. So in this video we will start from line number 40, that is from here. As with the passbook, and this question is also to be done in this video, because in the previous video this question was left. So we will discuss this question first, then we will start the teaching. So complete the following sentences on the basis of the unit you have just studied. The only difference between Benji's hens and his parents' land was that the hens belonged to Benji while his parents were tenant farmers. Benji wanted to buy his parents' land to put up more incubators houses. It was possible to gauge Benji's progress by covering his father's land and employing more people. Benji's parents did not like Florence because she had thick legs, T-H-I-C-K, thick heavy legs and loose lips and unreflective grey eyes. Then, who had Johnson rented their land from? So Johnson had rented their land from Sanders, Mr. Sanders. What information did Sanders give them that made them happy? The information which Sanders gave them was that their son was going to buy the land. That was Benji. Who was Florence? Florence was a lady staff in the poultry farm owned by Benji, and she was the girl with whom that Benji decided to get married. Why did Benji want to marry Florence? Benji wanted to marry Florence because she was very helpful in his hatchery, in his hen business, in his poultry business, because she was cleaning the dung of the hens. So he decided to marry Florence. As with the passbook and the land, his father and mother were not prepared for that. As with the passbook and the land, his father and mother were not prepared for that. वो पासबुक के संबंध में और अपने बेटे के बिहेवियर के संबंध में उसके पेरेंट्स रेडी नहीं थे. वो जो होने जा रहा था, that was beyond their hope. Married, aren't you all right as you are? Don't you want time to consider it? Where are you going to live? उनके पेरेंट्स ने, बेंजी के पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि शादी करोगे तो किससे करोगे, कब करोगे, क्या इसके विषय में कुछ सोचोगे? शादी के भी बाद तुम कहाँ स्टे करोगे? Where do you live? Where will you live after that? Here, Benji said. Benji answered them that he would live there. वो बोला कि यहाँ पर आप ही के घर में से यहीं पर. And that autumn, at the end of his 40th year, 40 साल के अंत में, Benji moved into the house with Florence as his wife. और 40 साल का जब हुआ, 40 साल की उसकी उम्र हुई, अवस्था हुई, तो बेंजी ने उस फ्लोरेंस के साथ शादी कर ली और घर में पत्नी के रूप में उसका आगमन हुआ. We will want
द फ्रंट बेडरूम, बेंजी सेड। बेंजी बोला कि पापा हमें फ्रंट बेडरूम चाहिए। ऑल देयर लाइव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द फ्रंट बेडरूम। पूरी जिंदगी ताउम्र उसके पेरेंट्स उसी बेडरूम में सोए थे, लेकिन अब वो डिमांड कर रहा है कि मुझे चाहिए। नाउ दे वैकेटेड इट एंड मूव्ड इनटू द बैक। अब उन लोगों ने उसे खाली कर दिया और पीछे वाले कमरे में चले गए। दिस रिमूवल हर्ट देम डीपली। इस प्रस्थान से, इस विस्थापन से वे लोग बहुत दुखी हुए। बट बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजीज हाउस, लेकिन अब ये बेंजी का हाउस था। बिकॉज बेंजी आस्क्ड इट दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट। और बेंजी ने उसे मांगा, बोला, इसलिए बिना कुछ कहे वे लोग उसमें चले गए। एडिंग ए लिटिल मोर टू द लॉन्ग क्रॉनिकल ऑफ सेक्रीफाइस फॉर गिविंग बेंजी बिकॉज द सिंपल माइंडेड कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड। उन्होंने थोड़ा और सेक्रीफाइस किया, जो त्याग वे लोग शुरू से करते आ रहे थे इस सिंपल माइंडेड इंसान के नाम पर, उन्होंने वही समझकर कुछ और छोड़ दिया। एक रूम और सही, पूरी ज़िंदगी दे दी, सारी संपत्ति दे दी तो कुछ गम नहीं, एक कमरा ही तो मांगा है तो ले बेटा तू ये भी ले जा। बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वाज डिफरेंट। लेकिन उस लड़की की जो समस्या थी फ्लोरेंस की, वो कुछ डिफरेंट थी। इट सीम्ड टू देम दैट द गर्ल वाज अबाउट टू टेक बेंजी अवे फ्रॉम देम। उन लोगों को लगा कि वह लड़की बेंजी को, उनके बेटे को उनसे दूर ले जाएगी। द एयर इन द हाउस बिकेम चार्ज्ड डीपली विथ एंटागोनिज्म। घर की जो वायु थी, घर का जो वातावरण था, वह दुश्मनी के भाव से में बदल गया। इल विल, एंटागोनिज्म मतलब इल विल, एंटागोनिज्म का मतलब इल विल। द हाउस इटसेल्फ इनविजिबली बट क्लियरली डिवाइडेड। घर भले ही स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन बंटवारा तो हो ही गया, दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो क्लियरली डिवाइडेड था। एंड देन प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअलिटी। और कुछ दिनों के बाद सही माने में घर का बंटवारा हो गया। अप टू दैट टाइम द फोर पीपल हैड ईटन टुगेदर। उस दिन तक, उस समय तक चारों लोग, वो बेंजी हस्बैंड वाइफ और ये दोनों हस्बैंड वाइफ साथ साथ खाते थे। सडनली बेंजीज मदर डिड नॉट लाइक द वे फ्लोरेंस स्कोर्ड द सॉसपेन। सॉसपेन की सफाई जिस तरह से करती थी फ्लोरेंस, ये बेंजी की मम्मी को बात पसंद नहीं आई। आई ऑलवेज स्काउड देम विथ सोडा। सोडा हैज ऑलवेज बीन गुड इनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल। उसकी मम्मी बोली, सोडा से साफ करना अच्छा रहता है, मैंने अब तक सोडा से ही सफाई की है सॉसपेन को। लेकिन इस बात पर वह जो बहू थी फ्लोरेंस, शी बिकेम एंग्री। व्हेन बेंजी हर्ड ऑफ द क्वेरल ही हैड ए वेरी सिंपल सॉल्यूशन। जब बेंजी के सामने ये मुद्दा आया तो उसने बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन उसका खोजा। दैट सेटल्स इट। वो बोला हो गया, फैसला हो गया। ही सेड नाउ यू ईट इन द किचन। आप किचन में खाइए, एंड वी विल ईट इन द अदर रूम। और हम लोग दूसरे रूम में खाएंगे। एंड थ्रू आउट दैट विंटर बेंजी एंड हिज वाइफ lived in one part of the house and his father and mother in the other. To the old people the days began now to seem very long. अब पुत्र से अलग हो जाने से उन वृद्ध लोगों की, पेरेंट्स की ज़िंदगी बहुत दुखदाई हो गई। उनके दिन बड़े हो गए, दिन काटने से नहीं कट रहे थे। एंड एज दे लुक्ड आउट ऑन द लैंड दे कुड सी द रीजन। अब ऐसा क्यों हुआ था, वे जब निगाह दौड़ाते थे अपनी ज़मीन पर तो कारण समझ में आता था। वेयर देयर हैड वंस बीन ब्राउन बेयर अर्थ। जहाँ कभी भूरी ज़मीन हुआ करती थी। रोज ऑफ विंटर बीन्स। जहाँ विंटर में बीन्स की, सेम की खेती होती थी। पैचेज ऑफ हीट। जहाँ गेहूँ की क्यारियाँ थीं। देयर वेयर नाउ ओनली बेंजीज चिकन हाउसेज। अब वहाँ केवल बेंजी की मुर्गियों के घर हैं। द अर्थ वाज स्टिल देयर। जमीन अब भी थी, बट द पर्पस ऑफ इट नो लॉन्गर कंसर्न्ड देम।
लेकिन अब उस ज़मीन से उनका कोई लेना देना नहीं था। द प्लो, अब उसका जो हल था, द मेयर, वह जो घोड़ी थी, द कार्ट, जो गाड़ी थी, एंड देयर फ्यू टूल्स, और कुछ औजार उनके जो कृषि संबंधित थे, स्टूड अबाउट इन द यार्ड, अब उसे यार्ड में रख दिया गया था। बट नाउ इट वॉज ट्रूअर देन एवर दैट विदाउट द अर्थ दे वेयर यूजलेस, अब यह क्लियर था कि ज़मीन ही उनकी पहचान थी और ज़मीन के बिना वे अब कुछ नहीं थे, उनकी पहचान ही नष्ट हो गई थी। एज द विंटर वेंट ऑन एंड द फोर पीपल वेयर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर्स, अब विंटर बीतता गया और चारों लोग अब रूम में ही बंद हो गए, अपने काम से आते बाहर जाते बातचीत नहीं होती। द डिवीज़न इन द हाउस बिकेम एन इनॉर्मस गैप, अब जनरेशन गैप दोनों में बहुत बड़ा हो गया। पिता पुत्र के बीच खाई बढ़ती चली गई, बहू और सासू के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो गया। द टू वीमेन पास्ड ईच अदर ऑन द स्टेयर्स विथ ग्लांसेज ऑफ एंटागोनिज्म नॉर स्पीकिंग, अब दोनों महिलाएं से जब सीढ़ियों पर पास करती तो एक दूसरे को बुरी भावना से देखती, बोलती कुछ नहीं। व्हेन बेंजीज फादर वॉकड आउट टू प्रीच ऑन संडेज ही वॉकड स्लोली एंड ब्रोकनली विद द स्टेप्स ऑफ एन ओल्ड मैन, अब जब वह बूढ़ा व्यक्ति बेंजी का फादर संडे के दिन उपदेश देने प्रीचिंग देने निकलता है तो वह बहुत धीरे धीरे चलता है, टूटे हुए मन से। अब उसके चलने का तरीका ऐसा है जैसे वह बूढ़ा हो गया हो। आदमी किसी दुख से जितना बूढ़ा नहीं होता, जितनी गरीबी से बूढ़ा नहीं होता, उतना बूढ़ा वह हो जाता है जब अपने बाल बच्चों से उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। जब तोहफा में बेटे से पिता को विश्वासघात मिलता है तो पिता जल्दी ही वृद्ध हो जाता है। प्री ऑक्यूपाइड ओनली बेंजी अपीयर्ड नॉट टू बी अपसेट, घर में सारे लोग अपसेट थे बेंजी को छोड़कर। प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज हैंड्स, अब वो अपनी मुर्गियों में ऑक्यूपाइड था, लीन था। इट वॉज एज इफ द इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल नेवर पेनेट्रेटेड बियॉन्ड हिज प्लम्प hairy face and the eyes that looked so harmless and simple still, अब उसके मोटे दिमाग में मोटे बड़े से मुंह और घुंघराले और जो घने से जो बाल थे उसके माथे पर, उसमें अब जो उसकी आँखें थीं वो कितनी सिंपल मालूम पड़ती थीं, लेकिन उसमें दिमाग अब भी नहीं था। नॉर्मल पीपल जैसा बिहेवियर वह नहीं करता था, इमोशंस का मतलब वह नहीं समझता था। कैसे माता पिता की कदर करनी चाहिए, बड़ों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। सो इन रियल सेंस दैट बॉय वाज स्टिल सिंपल बिकॉज ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ ओल्ड पीपल, द फीलिंग ऑफ पेरेंट्स। बट इन द एंड इट वॉज बेंजी हु मेड द डिसीजन, लेकिन अंत में बेंजी ने डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया सो सुनिए। मम एंड डैड, ही सेड, इट वुड बी लॉट बेटर इफ़ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव। बेंजी दे सेड, वो बोला मम्मी डैडी अच्छा होगा कि आप कहीं और रहने चले जाइए। सुन करके दोनों बोले बेंजी क्या बोले, ए लॉट बेटर, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ही सेड, दिस इज़ आवर हाउस नाउ, ये हमारा घर है अब। वी वांट इट, हमें इसकी ज़रूरत है। आई बॉट द हाउस, मैंने घर को ख़रीदा। एंड आई वांट इट नाउ, और हमें इसकी ज़रूरत है, अब मुझे चाहिए। बेंजी, फिर ये लोग बोले आई बॉट इट एंड आई वांट इट। बेंजी सेड अगेन, आई वांट यू टू गो। बेंजी, वी कांट गो, हिज मदर सेड, नहीं बेटा मैं नहीं जा सकती। वी गॉट नो वेयर टू गो, हम लोग अब कहाँ जाएंगे, कोई जगह नहीं है। वी गॉट नो वेयर, यू हैव गॉट टू गेट आउट, बेंजी शाउटेड। बेंजी बोला कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, वो चिल्लाया। एज ही शाउटेड दे रियलाइज्ड मोर फुल्ली दैन एट एनी टाइम इन देयर लाइव्स दैट बेंजी वॉज रियली नॉट राइट इन हिज हेड। अब उन लोगों को समझ में आ गया सही माने में कि बेंजी का दिमाग अब सही नहीं है, सही माने में सही नहीं है।
वह मूर्ख ही है। His simple blue eyes were shot suddenly with a wild expression of insane anger. अब उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। They not only knew that Benji was a simple-minded man who was not fully responsible for his actions, but for the first time, struck by this wild-eyed burst of anger, they were frightened of Benji too. उन लोगों को पहली बार अपने बेटे की आंख में जो पशुवत बिहेवियर नज़र आया उससे वे डर गए। ऑल राइट दे सेड वी विल फाइंड सम वे टू गो। वे लोग बोले कि ठीक है चले जाएंगे। इट वॉज लिटिल मोर देन ए वीक लेटर व्हेन बेंजी ड्रोव हिज मदर एंड फादर डाउन इनटू द टाउन। ही नाउ हैड ए स्मॉल फोर्ड वैन। अब उसके पास एक छोटी सी फोर्ड वैन थी। उसने अपने मदर और फादर को उसमें बैठाया और ले गया दूसरी तरफ। एंड एज ही ड्रोव द वैन विथ हिज मदर एंड फादर ऑन द ड्राइविंग सीट ही शोड नो साइन ऑफ नॉर्मल इमोशन। उसने नॉर्मल इमोशन का, सामान्य भावना का कोई साइन नहीं दिखाया। इट वॉज क्लियर दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, ऑफ बिविल्डरमेंट और ऑफ डिस्पेयर। यह क्लियर था कि अब वो अफेक्शन, स्नेह, बिविल्डरमेंट, आश्चर्य, डिस्पेयर, निराशा, इन भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझता, इसकी उसमें समझ नहीं है। ही फेल्ट एंड स्पोक एंड थॉट ओनली इन द सिंपलेस्ट टर्म्स विद द क्रूअल सिंप्लिसिटी ऑफ ए चाइल्ड। वह एक बच्चे की तरह निर्दयतापूर्वक बोला। बच्चा जैसे नादान रहता है और निर्दयी जैसा बोलता है कभी कभी, वह बोला यू विल बी बेटर बाय योर सेल्फ इन लॉजिंग्स। ही सेड यू विल बी बेटर बाय योर सेल्फ। आप अपने रहिएगा अकेले, आपके लिए ठीक रहेगा। आप लोग आराम से रहिए, यहाँ पर अकेले रहिए, खुद रहिए। दे डिड नॉट आंसर। दे सैट विथ फेसेज मेड कम्प्लीटली इमोबाइल बाय ए काइंड ऑफ स्टूपिफाइड रेजिग्नेशन वेरी नियर टू ग्रीफ। वे लोग कुछ नहीं बोले, चुप खड़े थे, लेकिन भाव वह था कि वे बहुत दुखी थे। दुख इतना गहरा था कि मुख से आवाज़ बाहर नहीं आई। दे लिसेंड साइलेंटली एंड बिकॉज फॉर 40 years दे हैड बिलीव्ड बेंजी टू बी नॉट राइट इन हिज हेड, दे मेड अलाउंसेज फॉर द लास्ट टाइम। और 40 सालों से वे लोग यही समझ रहे थे कि बेंजी सामान्य नहीं है, तो असामान्य समझकर उसे एक बार फिर, अंतिम बार, लास्ट टाइम, उसे फिर माफ़ कर दिया। डाउन इन द टाउन द कार स्टॉप्ड इन ए स्ट्रीट फिल्ड इंटायरली विथ हाउसेज। वहाँ पर टाउन के उधर जाकर के गाड़ी रुकी जहाँ कुछ मकान थे। बेंजी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन। बेंजी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। हिज फादर्स एंड मदर्स बिलोंगिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन ऑन। माता पिता के जो सामान था, जो लॉजिंग्स था, बिलोंगिंग्स, वो पहले ही पहुंचा दिया गया था। एंड नाउ दे एलाइटेड एम्प्टी हैंडेड। अब खाली हाथे वे लोग नीचे उतरे। एज दे स्टूड ऑन द पेवमेंट। अब वे पेवमेंट पर नीचे खड़े थे। बेंजी स्पोक ए फ्यू वर्ड्स टू देम। बेंजी कुछ शब्द बोला। लुक्ड एट देम विथ अनमूव्ड सिंपल आइज एंड देन ड्रोव अवे। वही सिंपल आँखों के सहारे फिर कुछ बोला और आगे बढ़ गया। When the van had gone, they stood alone on the pavement, looking at the ground. They stood as if they had alighted in a strange place, were not sure of themselves and did not know what to do. जब गाड़ी चली गई, वे पेवमेंट पर खड़े थे, निरुद्देश्य, निरुत्साह। अब उन्हें पता नहीं था कि अब क्या करें, कहाँ जाएं इस विचित्र जगह में, इस अनजाने जगह में। वंस दे हैड द अर्थ। एक बार उनके पास ज़मीन थी। नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टेल। अब ये कहने से कुछ होने वाला नहीं था। फ्रॉम देयर डाउन कास्ट एंड साइलेंट फेसेज। अब उनके झुके हुए चेहरे अब सब कुछ बयां कर रहे थे। वेदर दे ऑल टुगेदर रियलाइज दैट इट टू हैड गॉन। अब उन लोगों ने मान लिया
ज़मीन भी उनके हाथ से चली गई। तो ये है इस पाठ का सार। द मोरल ऑफ द लेसन इज दैट पेरेंट्स should also be ready to safeguard their future. They should not depend fully on children like Benji. बेंजी जैसे बेटे होते हैं तो पेरेंट्स को सावधान हो जाना चाहिए, अदरवाइज इन द ओल्ड एज दे विल हैव टू गो विदाउट एनीथिंग nowhere. They will get no place, they will get nothing, they will get no future. So this is just like committing suicide by forgiving sons and daughters like Benji. बेंजी जैसे बेटे को माफ़ करके पिता ने माता ने आत्महत्या जैसा कर लिया। तो ये ऐसी संतान अगर हो तो पेरेंट्स को सावधान होना चाहिए, अपने फ्यूचर के प्रति। सारा धन सारी संपत्ति ऐसे बच्चों के हाथ में देना उचित नहीं है, यह मूर्खतापूर्ण कदम है। आज वही हुआ कि जॉनसन्स हैड लॉस्ट ऑल देयर वेल्थ, ऑल देयर अर्थ, नाउ दे आर विदाउट अर्थ, विदाउट मनी, विदाउट हाउस, विदाउट एनीथिंग। सो complete the following sentences on the basis of the unit you have just studied. ठीक है? When Benji asked his parents to vacate the front bedroom, they left that because it was on the name of Benji. Benji was the owner. Benji asked parents to go somewhere else because he had bought the house and Benji was the owner. Benji's parents did not speak when their son drove them down into the town because they were speechless. They were so sad that they could not speak. They were unable to speak because they had nothing in their hands, and Benji was their son, only one son, who was behaving in such a rough way. Read the following sentences and write true for true and false. With the arrival of Florence as Benji's wife, the house was filled with happiness. False. इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता था। फ्लोरेंस के आने के बाद घर में दुख आ गया, खुशी नहीं आई। Benji and his wife lived in one part of the house and his parents in the other. True. Benji paid utmost attention to his aging parents. Never. ये false. ठीक है? तो ये आपको हुआ। After that ये रिपीट हो गया। पेज जिसको आना था वो आ गया। इसमें आपको लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरह से, ये जो मैंने उसमें पढ़ाया ना सब लिखा है। दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, ये सही है, ये भी सही है। ठीक है? वाज द ऑनर ऑफ द हाउस, सब भरा हुआ है। इनटू द टाउन बिकॉज दे वेयर फ्राइटेंड ऑफ हिम मतलब ऑफ बेंजी। अच्छा, और नीचे वाले में फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये आपको हो गया। ये मैंने कर दिया। तो ये इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं और इसके बाद भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर इसका होगा। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।